Hi guys, this is lecture number 10. In this lecture I am going to solve a problem. So first I will read out the question of the problem. In an epicyclic gear train shown in the figure, arm A is fixed to the shaft. Yes. So this is an epicyclic gear train. So in this epicyclic gear train, this is arm A. This is arm A. This arm A is fixed on the shaft. Yes. Here this is the shaft. This is shaft. Okay, this arm A is fixed on the shaft. Yes. So here you should not get confused that here fixed means mounted. Arm A is mounted on the shaft. Yes. Okay, it means you should not take the speed of arm as 0. Here the meaning of fixed is mounted. Don't get confused and don't take speed of arm, that is Na is equal to 0. You should not take Na is equal to 0. Okay, next the wheel B. Wheel means gear only. Wheel means gear only. The wheel B having 100 teeth rotates freely on the shaft. Yes. So this is wheel B. This is wheel B means that is gear B, and it has 100 teeth and it is freely rotates on the shaft. Yes. So this gear B or wheel B is also mounted on the shaft. Yes. And this gear B is having 100 teeth. Okay, next wheel F with 150 teeth is separately driven. So this is wheel F. Okay, and it is having 150 teeth and it is separately driven. Separately driven means this wheel F is not mounted on the shaft. Yes, separately driven means this wheel F is not mounted on the shaft. Yes. Okay, next if the arm runs at 200 rpm, wheel F at 100 rpm in the same direction. So as I said here here they have given the speed of arm, that is 200 rpm. So it means the the speed of arm is not equal to 0. The speed of arm is not equal to 0 because here they have given the speed of arm as 200 rpm. So here the meaning of fixed is mounted. Here the meaning of fixed is mounted because here they have given the speed of arm as 200 rpm. Okay, next also they have given the speed of wheel F as 100 rpm, and both this arm and wheel F are rotating in the same direction. So here they have given the speed of arm as 200 rpm and speed of wheel F as 100 rpm, and this arm A and wheel F A are rotating in the same direction. It means if you take it means you should take the direction of both arm and wheel F as same. मतलब दोनों का डायरेक्शन आपको सेम कंसिडर करना है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों का डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे करके भी नहीं दिया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे करके भी नहीं दिया. तो आप कौन सा भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, मगर दोनों का सेम ही कंसिडर करना चाहिए. समझ रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में आर्म और व्हील का रोटेटिंग डायरेक्शन नहीं दिया, मतलब क्लॉकवाइज भी नहीं दिया, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं दिए. आप कौन सा भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मगर आर्म और व्हील एफ को दोनों को आपको सेम ही कंसिडर करना है. ओके, तो ये ऐसा कंडीशन है. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेट अस सी. फाइंड फर्स्ट वन, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी. Here there is a gear C, here and here. Here they have taken this gear also as C and this gear also as C, because you can see that this gear C is meshing with this gear B as well as this gear F. Okay, and if you consider this gear C, this gear is also meshing with gear B and gear F. So it means the size of this gear and this gear are same. So it means this gear and this gear must have the same number of teeth. Okay, so for that reason this gear and this gear are same. So since for that reason the name also they have given the same, C and C. यहाँ पे दोनों गियर, अगर आप दोनों गियर देखेंगे तो दोनों गियर
सेम गियर के साथ मैश हो रहे हैं, दोनों गियर बी और एफ के साथ मैश हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों का साइज सेम रहेगा। तो दोनों का साइज सेम रहा तो नंबर ऑफ टीथ भी दोनों के सेम रहेंगे, तो इसलिए दोनों गियर सी करके ही लिए हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ टीथ आपको फाइंड करना है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में स्पीड ऑफ व्हील भी फाइंड करना है, ये गियर का स्पीड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ I will write down the given data here. So for that I will read out the question once again. In an epicyclic gear train shown in the figure, the arm A is fixed to the shaft S. So यहाँ पे ये जो fixed करके वर्ड जो है नी, इसका मतलब है माउंटेड। फिक्स्ड बोले तो स्पीड जीरो नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आर्म का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए आप NA इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पे फिक्स्ड का मतलब है माउंटेड। Fixed to the shaft, yes. The wheel B having 100 teeth. So the number of teeth of wheel B is 100. That is equal, TB is equal to 100. Rotates freely on the shaft, yes. Wheel F with 150 teeth. मतलब it means TF is equal to 150 is separately driven. If the arm A runs at 200 RPM, wheel F at 100 RPM in the same direction. आर्म ए का स्पीड कितना है 200 है, ओके। व्हील एफ का स्पीड कितना है 100 है, तो एन ए इज इक्वल टू, हियर आई हैव टेकन इट एज 200 RPM एंड एन एफ इज इक्वल टू 100 RPM, बट आई हैव टेकन हियर both the values as positive. It means I have considered the direction of both the wheels, I have considered the direction for arm as well as F as anti-clockwise, because I have to consider the direction of both arm and F as same, because it is given in the question, that this arm and wheel F are rotating in the same direction. तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम कंसिडर करना है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं किया है क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है करके, मगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज ही करके कंसिडर करता हूँ। आप क्लॉकवाइज में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, मगर दोनों का सेम डायरेक्शन कंसिडर करना है। अगर आपको इसको क्लॉकवाइज में लिए तो -200 होगा, तो ये माइनस होगा तो आपको इसको भी -100 ही लेना पड़ेगा, इसको भी क्लॉकवाइज में ही रोटेट हो रहा है करके कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इफ दिस इज द कंडीशन, this is the given data, so for this condition you have to find out the number of teeth on gear C, that is TC is equal to question mark. Next, speed of wheel B, so NB is equal to question mark. So now first of all, always you have to find out the number of teeth of the gear which is not given in the question. मतलब यहाँ पे कौन से गियर का टीथ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके नंबर ऑफ टीथ आपको पहले फाइंड करना है, और क्वेश्चन में भी पहले केस में वही फाइंड करना है। तो इसलिए मैं नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी, ये गियर सी लो या ये गियर सी लो, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, गियर सी के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करता हूँ, तो मैं ये गियर सी करके कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डायग्राम यूज़ करता हूँ और ये RA इज इक्वल टू MT/2 ये फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है नी, ये गियर F और व्हील F का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे RF करके लिखता हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैं RF करके लिखता हूँ। ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, मैं अभी ये डिस्टेंस को स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करता हूँ बोले तो, गियर बी का रेडियस यूज़ करके और गियर सी का रेडियस यूज़ करके ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेडियस ऑफ गियर एफ का मैं स्प्लिट करता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये गियर बी का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये गियर कंसिडर करो आप, और यहाँ से यहाँ देखो अभी गियर बी का रेडियस है, तो इसलिए RB, ओके। यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए आप। सो नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक जो है नी, ये गियर सी का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये गियर सी का रेडियस है, तो इसलिए ये RC होगा। यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना RC होगा। नेक्स्ट, यहाँ से जो यहाँ से डिस्टेंस जो है ना अगेन RC होगा। क्यों बोले तो
यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना, ये भी गियर सी का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये भी डिस्टेंस जो है ना गियर सी का रेडियस है, तो इसलिए मैं आर सी लिया। यहाँ से यहाँ तक आर बी, यहाँ से यहाँ तक आर सी, और अगेन यहाँ से यहाँ तक आर सी। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना आर एफ, इसको मैं आर बी प्लस आर सी ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो आर एफ इज इक्वल टू आर बी प्लस आर सी, ठीक है। सो अभी क्या करता हूँ मैं, अभी क्या करता हूँ, आर एफ इज इक्वल टू 2 आर सी प्लस आर बी, आर एफ इज इक्वल टू आर सी प्लस आर सी, 2 आर सी प्लस आर बी। तो यहाँ पे लिखा। अभी ये रेडियस टर्म को है, रेडियस टर्म को मैं नंबर ऑफ टीथ से रिप्लेस करता हूँ। मैं कैसे रिप्लेस करते हैं मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मॉड्यूल का वैल्यू नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में किसी भी गियर का मॉड्यूल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो सभी गियर का मॉड्यूल को हम सेम करके अज्यूम करके आप रेडियस को ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट किए, तो रेडियस को ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट किए तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। जब मॉड्यूल का वैल्यू नहीं दिया है तो आपको भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जहाँ पे आर करके है वहाँ पे टी करके लिख सकते हैं। कब, जब यहाँ पे मॉड्यूल का वैल्यू, कौन से भी गियर का मॉड्यूल का वैल्यू नहीं दिया रहता है। और एक बार मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कौन से भी गियर का मॉड्यूल का वैल्यू नहीं दिया है तो आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली जहाँ पे आर करके है वहाँ पे डायरेक्ट टी करके रिप्लेस कर दो। ओके, तो इतना होने के बाद ये आर एफ के बदले में टी एफ होगा, आर सी के बदले में टी सी होगा, आर बी के बदले में टी बी होगा। तो अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। टी एफ का वैल्यू 150 है, 150 सब्स्टिट्यूट करो। टी सी का वैल्यू एज इट इज़ यही हमको फाइंड करना है। टी बी का वैल्यू 100 है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो टी सी का वैल्यू मिल गया आपको 25। ठीक है। नाउ वी शैल गो फॉर द टैबुलर कॉलम। टैबुलर कॉलम देखेंगे अगेन, ये तो ऊपर वाला लिख देते हैं आप, सीरियल नंबर, कंडीशन ऑफ मोशन, रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है आपको देखना है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है आपको देखना है, उतने यहाँ पे सब कॉलम बनाना है। यहाँ पे देखो एफ एक गियर हुआ, सी 2 गियर हुआ, बी 3 गियर हुआ, ठीक है, आर्म 4 होगा, और एक गियर सी है वो 5 हो गया। मतलब टोटल 5 एलिमेंट है, मगर यहाँ पे ये गियर सी और गियर सी दोनों सेम ही है, तो आपको दोनों का कॉलम एक ही कंसिडर करना है। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो गियर सी, यहाँ पे भी गियर सी है, यहाँ पे भी गियर सी है, मतलब दोनों का साइज सेम है। तो दोनों का साइज सेम है बोले तो आपको दोनों एलिमेंट को एक ही करके कंसिडर करना है, दोनों पार्ट्स को या दोनों गियर्स को एक ही करके कंसिडर करना है। मतलब ये दोनों गियर के लिए आपको एक ही कॉलम लिखना है। तो जब आप दोनों गियर को एक ही कॉलम लिए तो आपको चार ही सब कॉलम बनाना पड़ेगा टैबुलर कॉलम में। जब आप ये दोनों गियर ये सेम है तो आपको दोनों गियर के लिए एक ही कॉलम कंसिडर करना पड़ेगा। जब ये दोनों गियर के लिए एक कॉलम बना तो टोटल आपको 4 सब कॉलम बनेंगे। तो पहले कॉलम में आपको हमेशा आर्म लिखना है, पहले कॉलम में हमेशा आर्म के बाद देखो ये आर्म के बाद जो कौन सा गियर लिखना है बोले तो आपको ये गियर ट्रेन देखना है। ये गियर ट्रेन में इंटरनल गियर है, अगर इंटरनल गियर है तो आपको बड़ा गियर पहला लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में, यहाँ पे देखो ये गियर सी और गियर सी एफ गियर के अंदर घूम रहे हैं। यहाँ पे ये गियर सी और ये गियर सी एफ गियर के अंदर के साइड घूम रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि गियर एफ इंटरनल गियर है। तो गियर एफ इंटरनल गियर है तो आर्म के बाद सबसे बड़ा गियर कंसिडर करना है। जब गियर ट्रेन में इंटरनल गियर होता है तो आर्म के बाद सबसे बड़ा गियर कंसिडर करना है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा गियर कौन सा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ देखेंगे, टीबी का 100 है, टीएफ का 150 है, टीसी का 25, तो एफ गियर बड़ा होगा। तो आर्म के बाद गियर एफ लिखना है। ओके, गियर एफ किसके साथ मैच हो रहा है उसको लिखना है। गियर एफ देखो किसके साथ मैच हो रहा है,
गियर सी के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे भी गियर सी के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे भी गियर सी के साथ मैच हो रहा है, तो वो गियर यहाँ पे लिखना है। ओके, और ये दोनों गियर का साइज सेम है, तो दोनों गियर को मैं एक ही गियर कंसिडर करके उसको एक ही कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है, अभी देखो गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है, वो गियर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप गियर सी लिखे, यहाँ पे आप गियर सी लिखे। अभी गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है, वो गियर यहाँ पे नेक्स्ट में लिखना है। तो गियर सी यहाँ पे देखो बी के साथ मैच हो रहा है, ये सी लो या ये सी लो, दोनों बी के साथ ही मैच हो रहा है, तो वो गियर बी यहाँ पे लिखना है। और ये कॉलम जो है नहीं स्पीड्स रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला आर्म का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला एफ का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सी का रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला बी का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है देखेंगे। आर्म ए इज फिक्स्ड, मतलब हमेशा आर्म आपको फिक्स ही रखना है। नेक्स्ट, आर्म के बाद कौन सा है, गियर एफ है, तो इसको +1 रेवोल्यूशन मोशन देना है। व्हील एफ मेक्स +1 रेवोल्यूशन मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज दोनों सेम ही है। ओके, तो ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आर्म इज फिक्स्ड बोले तो इसका स्पीड होगा, आर्म का स्पीड होगा 0। ओके, नेक्स्ट व्हील एफ मेक्स, अभी व्हील एफ का स्पीड लिखना है, तो यहाँ पे ये कंडीशन पढ़ो, व्हील एफ मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशन में व्हील एफ का स्पीड है +1 है, तो यहाँ पे +1 लिख दो। ओके, नेक्स्ट गियर बी एफ के बाद कौन सा, गियर सी है, तो इसका स्पीड लिखना है यहाँ पे। तो इसका स्पीड लिखने के लिए है नहीं, गियर सी का स्पीड लिखने के लिए है नहीं, यहाँ पे हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम कैसे देखना पड़ेगा बोले तो, यहाँ पे आप गियर सी का स्पीड लिख रहे हैं, तो गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे देखो गियर सी, अगर ये गियर सी कंसिडर करो या ये गियर कंसिडर करो, दोनों सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे ये गियर कंसिडर कर रहा हूँ। गियर सी देखो किसके साथ मैच हो रहा है, हम यहाँ पे गियर सी का स्पीड लिख रहे हैं, तो गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे देखो गियर सी एफ के साथ भी मैच हो रहा है यहाँ पे, और बी के साथ भी यहाँ पे मैच हो रहा है, समझ रहे हैं। गियर सी एफ के साथ यहाँ मैच हो रहा है, बी के साथ यहाँ मैच हो रहा है, मतलब गियर सी जो है नहीं, गियर सी एफ के साथ भी मैच हो रहा है, बी के साथ भी मैच हो रहा है। यहाँ पे गियर सी का हम स्पीड लिखने के लिए जो है नहीं, गियर सी का स्पीड लिखने के लिए जो है नहीं, हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे गियर सी प्रीवियस गियर के साथ मैच हो रहा करके कंसिडर करते हैं। यहाँ पे गियर सी का स्पीड लिखने के लिए गियर सी जो है नहीं प्रीवियस गियर के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके ये इसका स्पीड लिखते हैं। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नो डाउट गियर सी इज मैचिंग विथ गियर एफ एज वेल एज गियर बी, but to write the speed of this gear C, we consider that the gear C is meshing with the previous gear only. To write the speed of gear C, we consider that the gear C is meshing with only the previous gear. Okay, तो यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, नो डाउट गियर सी एफ के साथ भी मैच हो रहा है, बी के साथ भी मैच हो रहा है, मगर गियर सी का स्पीड लिखने के लिए गियर सी प्रीवियस गियर के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके ये स्पीड लिखते हैं। ओके, तो अभी देखो गियर सी हमें एफ के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करें, तो गियर एफ के नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे ऊपर लिखो। ओके, और कौन से गियर का लिख रहे हैं आप, सी का लिख रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे साइन देखें, प्लस करके लिखें। यहाँ पे प्लस करके क्यों लिखे बोले तो, यहाँ पे क्या कंसिडर किया हम, सी और एफ मैच हो रहे हैं करके कंसिडर करें। तो यहाँ पे सी और एफ कैसे मैच हो रहे हैं, देखो ये वाला गियर एफ है, ये वाला गियर सी है, दो यहाँ पे सी एक्सटर्नल गियर है, एफ इंटरनल गियर है, सी एक्सटर्नल गियर है, एफ इंटरनल गियर है। जब एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल गियर मैच हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन सेम रहते हैं। जब एक इंटरनल गियर और एक एक्सटर्नल गियर, जब दोनों गियर मैच हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। तो यहाँ पे बट हम कंडीशन में क्या लिए हैं, एफ का डायरेक्शन प्लस ले हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है करके लिए एफ, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको लिए, तो सी का भी डायरेक्शन
एंटी क्लॉकवाइज में ही रहेगा, क्योंकि सी और एफ इंटरनल मैश हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखो सी और एफ का डायरेक्शन सेम हो गया तो सी एफ का एंटी क्लॉकवाइज है बोले तो सी का भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस, मतलब जो भी साइन एफ का रहेगा वही सी का भी रहेगा। ओके, इनटू सी किसके साथ मैश हो रहा है करके कंसिडर किया हम, एफ के साथ मैश हो रहा है करके कंसिडर करें, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। अभी गियर बी का स्पीड लिखना है। गियर बी का स्पीड लिखना है बोले तो गियर बी किसके साथ मैश हो रहा है वो यहाँ पे देखना है। गियर बी स्पीड लिखने के लिए गियर बी किसके साथ मैश हो रहा है वो देखना है। गियर बी देखो यहाँ पे भी सी के साथ मैश हो रहा है, यहाँ पे भी सी के साथ मैश हो रहा है। आप कौन सा भी गियर सी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये गियर कंसिडर करता हूँ। गियर बी सी के साथ मैश हो रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो गियर बी सी के साथ मैश हो रहा है, तो गियर बी सी के साथ मैश हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो ऊपर। आप कौन से गियर के लिख रहे हैं, बी के लिख रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे लिखो। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो गियर बी सी के साथ मैश हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं गियर बी सी के साथ मैश हो रहा है। ओके, तो गियर बी सी के साथ मैश हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो, और कौन से गियर के लिख रहा है, बी के लिख रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो नीचे। ओके, यहाँ पे माइनस साइन लिए। माइनस साइन लिए क्यों लिए बोले तो गियर बी और गियर सी, गियर बी और गियर सी दोनों एक्सटर्नल गियर्स हैं, दोनों के टीथ बाहर है। तो व्हेन टू एक्सटर्नल गियर्स आर मैशिंग विथ ईच अदर द डायरेक्शन ऑफ बोथ द गियर्स विल बी अपोजिट। मतलब जब दो एक्सटर्नल गियर्स मैश हो रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहता है। मतलब गियर सी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो गियर बी क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ पे देखो गियर सी का डायरेक्शन प्लस है, गियर सी का डायरेक्शन प्लस है, मतलब गियर सी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो गियर बी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ठीक है, तो गियर बी का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम माइनस करके लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये होगा इनटू गियर बी किसके साथ मैश हो रहा है, सी के साथ मैश हो, तो इसका मैग्नीट्यूड, गियर सी का मैग्नीट्यूड, ये प्लस साइन छोड़ के ये गियर सी का मैग्नीट्यूड जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1 यहाँ पे है। ओके, तो वो यहाँ पे देखो टी एफ बाई टी सी इंटू 1, टी एफ बाई टी सी इंटू 1। ओके, यहाँ पे देखो टी सी और ए टी सी कैंसिल होता है, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। अगर कुछ कैंसिल यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है तो कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे टी सी और टी सी कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा क्या टी एफ माइनस टी एफ बाई टी बी इंटू 1। अभी सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे टी एफ माइनस टी एफ बाई टी बी इंटू 1 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंडीशन, आर्म ए इज फिक्स्ड एंड व्हील एफ मेक्स प्लस एक्स रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे जहाँ पे 1 है एक्स पे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 0 है 0 ही है, 1 के बदले में एक्स, पहले प्रॉब्लम्स में बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टी एफ बाई टी सी इंटू 1 है, यहाँ पे टी एफ बाई टी सी इंटू एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो टी सी तो कैंसिल हो गया है, बचा क्या माइनस टी एफ बाई टी बी इंटू 1, माइनस एज इट इज टी एफ टी बी। ओके, यहाँ पे 1 के बदले में, यहाँ पे जो 1 जो है ना उसके बदले में यहाँ पे माइनस एक्स लिया हुआ है। ओके, समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज ऐड प्लस वाई मोशन टू ऑल एलिमेंट्स। यहाँ पे प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। ओके, सो नेक्स्ट total motion is equal to this plus this, so this will represent the speed of arm A, so that is n is equal to 0 plus y is y. Okay, next x plus y, यहाँ पे x plus y लिखा है, ये जो कॉलम है एन एफ, ये स्पीड ऑफ आर्म का, ये स्पीड ऑफ एफ का है, तो एफ एन एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट दिस प्लस दिस, ये दिस प्लस दिस, ये यहाँ पे लिखा हूँ देखो क्लियरली, एक्स टी एफ बाई टी सी प्लस वाई, ये प्लस वाई यहाँ पे। ओके, ये जो कॉलम जो है ना स्पीड ऑफ गियर सी का रिप्रेजेंट करेगा, यही यहाँ पे मैं क्लियरली लिखा हूँ। ओके, नेक्स्ट दिस प्लस दिस माइनस टी एक्स टी एफ बाई टी बी, ओके, प्लस वाई, तो दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ गियर बी, यानी बी इज इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस टी एक्स एक्स टी एफ बाई टी बी, माइनस एक्स टी एफ बाई टी बी
प्लस वाई प्लस वाई। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे वो ठीक से क्लियरली नहीं है तो ये वाला मैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हूँ, यानी b इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एफ बाई टी बी, ये वाला प्लस वाई प्लस वाई। ओके, ये आप 4 इक्वेशंस मिल गए टैबुलर कॉलम से। अभी देखो, गिवन दैट एन ए इज इक्वल टू 200। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ टीथ गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी है। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ गियर बी। स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, यानी स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करने के लिए यानी बी इज इक्वल टू ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे देखो कौन से अननोन है, एक्स और वाई अननोन है। टी एफ का वैल्यू मालूम है, टी बी का वैल्यू मालूम है, एक्स और वाई का वैल्यू मालूम नहीं, तो इसलिए हमको एक्स और वाई का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, गिवन दैट एन ए इज इक्वल टू 200 फ्रॉम द टेबल मीन्स फ्रॉम टैबुलर कॉलम एन ए इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे गिवन एन ए इज इक्वल टू 200 यहाँ से आया, गिवन में है एन ए इज इक्वल टू 200, तो वही एन ए इज इक्वल टू 200 यहाँ पे। फ्रॉम टेबल एन ए इज इक्वल टू वाई। फ्रॉम टेबल मतलब टैबुलर कॉलम से एन ए इज इक्वल टू वाई, तो एन ए इज इक्वल टू वाई। सो ये दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, हियर यहाँ पे एल एच एस दोनों सेम है, तो ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वाई इज इक्वल टू 200। ओके, वाई का वैल्यू मिल गया आपको। नेक्स्ट, गिवन दैट एन एफ इज इक्वल टू 100 RPM। ओके, ये गिवन है, यहाँ पे देखो गिवन एन एफ इज इक्वल टू 100 RPM, यही वहाँ पे लिखा हुआ है, एन एफ इज इक्वल टू 100 RPM। ओके, नाउ फ्रॉम टेबल एन एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये जो है ना टैबुलर कॉलम से मिला आपको, एन एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे लिखे गए। फ्रॉम टेबल एन एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। यहाँ पे देखो एल एच एस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड मैं इक्वल कर सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू ये 100। ओके, तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया आप, ये 200 यहाँ पे y पे रिप्लेस कर दो बस। ओके, तो ये आप सिंप्लीफाई करने के बाद x का वैल्यू माइनस 100 मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना है। स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन लेता हूँ, यानी b इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एफ बाई टी बी प्लस वाई। ये इक्वेशन लेके मैं गियर बी का स्पीड फाइंड करता हूँ। यहाँ पे देखो, फ्रॉम टेबल एन बी इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एफ बाई टी बी प्लस वाई। इसको मैं ब्रैकेट डालता हूँ, क्यों बोले तो ये सब वाई सेपरेट है। ऐसा नहीं होना कि आप टी एफ बाई टी बी प्लस वाई करके इसको मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेपरेट टर्म है, ये वाई सेपरेट टर्म है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। माइनस एज इट इज रहेगा। एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है। यहाँ पे देखो माइनस एक्स आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस 100 है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो मैं सिर्फ 100 लिखते हैं, वैसे लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये एक्स बाहर का बाहर एक्स रहेगा, एक्स का वैल्यू माइनस 100 है तो माइनस 100 ब्रैकेट में डालो। टी एफ का वैल्यू 150 है, 150। टी बी का वैल्यू 100 है तो यहाँ पे 100 लिख दिए, प्लस वाई है तो प्लस वाई 200। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद टी एन बी इज इक्वल टू 300 RPM। तो यहाँ पे ये स्पीड होगा गियर बी का, और यहाँ पे प्लस 350 RPM आया, तो इसलिए इसका डायरेक्शन हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे माइनस 350 आता तो इसका डायरेक्शन होता क्लॉकवाइज। ओके, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली और यू कैन आस्क द क्वेश्चंस in the Zoom class. Okay, bye.